قائد اعظم ہمارے عظیم لیڈر وہ چاہتے تھے کہ ہم انگریزوں سے آزاد ہوں اور یہ نہ ہو کہ انگریزوں سے آزاد ہو کے ہم ہندوؤں کی غلامی کریں. وہ ایک آزاد ملک میں مدینہ کی ریاست کے اوپر اپنی قوم کو کھڑا کرنا چاہتے تھے. اور وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے فرمان پہ، ان کی سنت پہ ہمیں قوم بنانا چاہتے تھے جدھر سب سے پہلے انصاف ہو، عدل ہو، قانون کی حکمرانی ہو، قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو، طاقتور اور کمزور کے لیے ایک ہی قانون ہو. وہ قومی نہیں، وہ جو ہمارا قومی نظریہ تھا وہ نظریہ تھا ان اصولوں پہ جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کھڑی کی تھی. عدل اور انصاف، انسانیت، فلاحی ریاست، جدھر ایک ریاست اپنے کمزور طبقے کو اٹھائے، اپنی پالیسیز بنائے جس میں غریبوں کو غربت سے نکالے. جو آج چائنا کر رہا ہے. چائنا نے 70 کروڑ لوگوں کو پچھلے 35 سال میں غربت کی لکیر سے نکال دیا اور سپر پاور بن گئی. وہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے کیا کہ مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف پہ کھڑا کیا ایک معاشرہ. پہلی دنیا کی تاریخ کی فلاحی ریاست بنائی. ریاست نے اپنے بیواؤں کی، یتیموں کی، غریبوں کی، بزرگوں کی، مزدوروں کی ریاست نے ذمہ داری لی. اللہ کی برکت آئی ان پہ. اور ایک ریاست جو لا الہ الا اللہ پہ کھڑی ہوئی. 2 سپر پاورز تھی اس وقت، 2 بڑی سپر پاورز. وہ ریاست مدینہ کی ریاست نے نہ ان سے کوئی امداد مانگی، نہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بیکاری ہیں. بیگرز آر ناٹ چوزرز. انہوں نے نہیں کہا، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 627 اور 628 میں دونوں کے سربراہوں کو، سپر پاور کے سربراہ کو خط لکھا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اگر تم اس پہ چلو گے اپنی بہتری کے لیے. امداد مانگی. یہ نہیں کہا کہ میں تو بھیک مانگنے نہیں آیا. آپ نے سنا ہوگا، آپ نے سنا تھا کہ چیری بلاسم ابھی اس نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی، میں تو بھیک مانگنے نہیں آیا ہے، تو بڑا مشکل وقت ہے، میں تو امداد دے دیں. انہوں نے، کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے. ایک شعر ہے کہ ایک سجدہ جس کو تو گران سمجھتا ہے دیتا ہے لاکھوں سجدوں سے تجھے نجات. آزاد کر دیتا ہے انسان کو. تو ایک یہ نظریہ ہے، اور دوسرا نظریہ ہے یہ چوروں کا. یہ نظریہ ہے پیسہ. یہ نظریہ ہے اللہ کے سامنے نہیں جھکنا، بلکہ پیسے کی بت کی پوجا کرنا. یہ وہ نظریہ ہے جدھر یہ کبھی امریکہ کے پیر پالش کرتے ہیں، جوتے پالش، کبھی کسی کے بوٹ پالش کرتے ہیں، صرف ایک مقصد کہ کسی طرح ہمارا پہلے چوری کا پیسہ بچ جائے.
किसी तरह एनआरओ मिल जाए दूसरी दफा, अपने पैसे को बचाने के लिए ये इसराइल को भी तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। अपने पैसे को बचाने के लिए ये कश्मीरियों के उनकी जो जद्दोजहद है, उनकी कुर्बानी है आजादी के लिए, ये उनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान को खुश करने के लिए, अपनी पैसा बचाने के लिए ये अमेरिका की जंग में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जिस तरह इन्होंने वॉर ऑन टेरर में 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर, हम मदद अमेरिका की कर रहे हैं और जिसकी मदद कर रहे हैं वो हमारे ऊपर ही ड्रोन अटैक कर रहा है। 400 ड्रोन अटैक हुए, ये दोनों बैठे हुए थे, जरदारी और नवाज शरीफ। एक दफा इनकी जुर्रत नहीं हुई अमेरिका को कहने के लिए कि ये सारे इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। कोई दुनिया का कानून इजाजत नहीं देता कि आप भी फैसला करें कौन मुजरिम और आप ही कत्ल कर दे। कोई दुनिया का कानून जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाजत नहीं देता। लेकिन क्योंकि इनके पैसे पड़े हुए हैं मगरबी बैंकों में, ऑफशोर अकाउंट्स में, बड़े बड़े महलात है लंदन में, ये कभी इनके सामने अपने मुल्क के मफादात के लिए ये कभी खड़े नहीं होंगे। ये हमेशा ऐसी बातें करेंगे कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि हम तो बेकारी हैं इसलिए हम गुलाम हैं। ये हमेशा ऐसी बातें करेंगे कि जी हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं, जब चाहे अमेरिका मार सकता है। ये मेरे पाकिस्तानी और नौजवानों सुन लो, आज अगर पाकिस्तान एक अजीम खुददार मुल्क नहीं बन सका तो इन चोरों की वजह से। हम सुने जो हमारा नजरिया है, पाकिस्तान का कौमी नजरिया है। हम सबसे दोस्ती चाहते हैं, हम भी चाहते हैं अमेरिका से दोस्ती हो। हमारे वहां लोग, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी सबसे अमीर तरीन दुनिया की पाकिस्तानी कम्युनिटी है। हम अमेरिका को एक्सपेक्ट करते हैं, हम भी चाहते हैं कि अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हो, लेकिन हम अमेरिका की गुलामी नहीं चाहते। मैं भी चाहता हूं कि हमारी हिंदुस्तान से दोस्ती हो। मुझे तो हिंदुस्तान ने जितना मुझे इज्जत दी, जितना उन्होंने मुझे वहां जिस तरह मेरी कदर की, शायद ही किसी पाकिस्तानी की हो। मैं भी दोस्ती चाहता हूं, लेकिन मैं कश्मीरियों की कुर्बानियों की, मैं कभी उनकी कुर्बानियां की कब्र पे हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं कर सकता। अब तक 1 लाख कश्मीरी पिछले 35 साल में कुर्बानी दे चुके अपनी आजादी के लिए। मैं कभी हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं कर सकता जबकि मेरे कश्मीरी भाइयों के ऊपर जुल्म हो रहा हो। इसलिए हम भी दोस्ती चाहते हैं। अमेरिका कहता है कि रूस ना जाओ। भाई मैं अमेरिका से पूछता हूं, तुम हो कौन मुझे कहने वाले कि मैं रूस ना जाऊं? अगर हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल खरीद के
अपने मुल्क के अंदर अपने अवाम के लिए डीजल और पेट्रोल 25 माशाअल्लाह माशा मैं देख रहा हूं कि मैं यहां खड़ा होके मैं पसीने में नहाया गया हूं, तो आप अंदर कैसे आपका हाल हो रहा होगा। सलाम करता हूं आपको, जुनून को सलाम करता हूं। अच्छा जी, अब हिंदुस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है, पाकिस्तान नहीं है। उनका इत्तेहादी होते हुए वो रूस से 30% से 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहा है, और वो अपने लोगों के लिए बजाय पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत बढ़ाने पे वो कम कर रहे हैं, 25 रुपए लीटर कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। और जब हिंदुस्तान से पूछा गया कि जनाब आप तो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, आप क्यों रूस से तेल ले रहे हैं, तो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम आपके इत्तेहादी होंगे, लेकिन हमारी पहली कोशिश ये है कि हम अपने लोगों की खिदमत करें, उनकी परवाह करें, उनके लिए महंगाई कम करें। हम बेशक आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन हम कीमतें ही बढ़ाने लगे, हम रूस से तेल लेंगे। और यहां अमेरिका के गुलाम चेरी ब्लॉसम, जुर्रत नहीं है इनकी रूस से तेल लेने की। इनका फाइनेंस मिनिस्टर कहता, उससे पूछा किसी ने, CNN पे खातून पूछा कि आप, इमरान खान कह रहा था हम रूस से तेल लेंगे, आप क्यों नहीं ले रहे, तो जवाब देता, मुफ्ता इस्माइल जवाब देता, कहता रूस हमारे पास आए और हमें बताए कि तेल कितने का देगा। बेशरम आदमी, शर्म करो, तेल की हमें जरूरत है और रूस हमें आके बताए कि हम सस्ता तेल दे रहे हैं तुम्हें। इसलिए कि इनको डर है, ये अमेरिका की गुलामी नहीं, ये गुलामी से भी नीचा, अमेरिका का नाम सुन के इनकी कांपें टांगने लग जाती है। तो मेरे पाकिस्तानियों, दो रास्ते हैं, दो नजरिए हैं। एक तरफ अमेरिका ने इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, दूसरी तरफ वक्त आ गया है कि सारी कौम अपनी हकीकत आजादी की जद्दोजहद करे, जहाद करे। मुझे जो अमेरिका से गिला पता क्या है, मैं अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, मैं उनके माशरे को अंदर से समझता हूं। मुझे उनसे एक गिला सबसे ज्यादा ये है कि अपने मुल्क में अगर कोई जमानत पे हो, अगर आपके मुल्क में कोई जमानत पे हो, तो आप उसको चपरासी भी नहीं रखते। और यहां उसको हमारे मुल्क का वजीर आजम बना दिया। पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी को और उसके बेटे को, हमजा गुड़ी को, आपने इस मुल्क की 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जो आपने तौहीन की है, आप कितनी हकारत से हमें दे रहे हैं कि हमारे मुल्क में सिर्फ इसलिए कि ये आपके कंट्रोल में रहें, ये आपकी हर बात माने, ये आपको सलूट करें, ये आपके सामने सजदे करें, आपने हमारे मुल्क पे मुजरिमों को बिठा दिया है क़यादत में। आपने हमारी तौहीन की। मेरे पाकिस्तानियों, इससे बड़ी तौहीन
एक कौम की नहीं हो सकती कि एक मुल्क के ऊपर, वो मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बना हो, उस मुल्क के ऊपर मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दो। आसिफ जरदारी इस मुल्क की बीमारी, शहबाज शरीफ, हमजा कुकड़ी, राना सनाउल्लाह कातिल, यानी ये इससे बड़ी हमारी क्या तौहीन हो सकती है। इसलिए गौर से सुन लो, आपने अब से लेके जब तक इलेक्शन नहीं होता, मैं हर अपनी बहनों को कह रहा हूं, बच्चों को कह रहा हूं, नौजवानों को कह रहा हूं, बुजुर्गों को, आपने घर घर जाना है। खुर्रम आपने दरवाजे खटकाने हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हकीकी आजादी की जहाद लड़ रहे हैं आप। मैं आखिर में एक पैगाम देना चाहता हूं अपने मुल्क के वो इदारे जो इंसाफ दें। मैं अपने मुल्क के इंसाफ के इदारों को पैगाम देना चाहता हूं, और आपने बताना है सबने कि क्या मैं इनको ठीक पैगाम दे रहा हूं। वो ये पैगाम है कि ये कौम कभी ये जो मर्जी आप कर लें, जितना मर्जी जुल्म करें, हरासा करें, इमरान रियाज जैसे सहाफियों को, एयाज अमीर जैसे सहाफियों को, जो अपने के ज़मीर के साथ खड़े हैं, हमारे सोशल मीडिया के बच्चे जिनको आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, घरों से पकड़ रहे हैं, मेरी पार्टी के लोग जिनके ऊपर एफआईआर काट रहे हैं, 15 एफआईआर मेरे ऊपर आपने काटी है, 15,000 भी काट लें तो पीछे नहीं हटने लगा मैं। मेरे लोगों के ऊपर, और वो जो कभी नहीं भूलेगा, जो मेरी बहनों के ऊपर, बच्चों पे, फैमिलीज पे 25 मई को जो आपने तशद्दुद करवाया, सुन लो कान खोल के, एक एक पुलिस वाला जिसने तशद्दुद किया था उसका हमने नाम नोट किया है, और इंशाअल्लाह एक एक को जिसने गैर कानूनी चीज की है उसका हम पूरी तरह एहतसाब करेंगे। मैं आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आप कान खोल के सुन लो, आप दोनों को मैंने अपॉइंट किया था, इसलिए किया था कि आप दोनों ईमानदार हैं। ये ईमानदारी नहीं है कि जब आप हमजा कुकड़ी के कहने पे गैर कानूनी चीजें करें, जो आप ये इलेक्शन में मुदाखलत कर रहे हैं, जो ये आप इलेक्शन में धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं इंतजामिया के जरिए, आप कान खोल के सुन लें कि सारी कौम आपको देख रही है। ये तो भी इस तरह को इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद भी आपकी जिंदगी है। जिस तरह आप इस इलेक्शन में गैर कानूनी चीज करेंगे, उतना आपको
कानून का सामना करना पड़ेगा। और हम एक एक को, जिसने कानून तोड़ा, आपको मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये कौम आपको बख्शेगी नहीं। अब मुल्क बदल गया। पुराने जमाने का पुराना पाकिस्तान, इंतकामी कार्रवाइयां, इलेक्शन में धांधली, झूठी FIR, लोगों को मारे पड़वानी, ये अब आज आपको इलेक्शन नहीं जिताने लगी। मुल्क बदल चुका है। सोशल मीडिया का जमाना है। इंफॉर्मेशन को नहीं रोक सकते। जो हलकों के अंदर 10-10 हजार रुपए के चेक बांट रहे हैं लोगों को खरीदने के लिए, मेरी सारे लोगों को पैगाम यह है कि पैसे इनसे लेना, लेकिन ठप्पा बल्ले पे लगाना। शेखपुरा, अब बस मैं आखिर में एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। हाथ खड़ा करके आपने एक चीज मुझे बतानी है कि अब से लेके पोलिंग डे तक हाथ उठा के बताएं कि आपने घर घर जाना है। ये आपकी इलेक्शन है। ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की इलेक्शन है। इस इलेक्शन से फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान इन चोरों का बनेगा या एक वो कायदे आजम का पाकिस्तान बनेगा, खुददार कौम बनेगी, आजाद कौम बनेगी, अदल और इंसाफ वाली कौम बनेगी, कानून में सब एक बराबर होंगे। ये नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और नौजवानों इस हदीस को लिख लो, उन्होंने कहा तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, बर्बाद हुई। जिधर ताकतवर के लिए एक कानून, यानी वो ताकतवर डाके मारे तो उनको NRO मिल जाए, और गरीब लोगों को, चोरों को जेलों में डाले, कौम तबाह हो जाती है। हमारी तबाही का, यानी हम उधर जिधर पहुंचना चाहिए था, हम सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच सके कि हमारे बड़े बड़े डाकू दंदनाते फिरते हैं, अरबों रुपए की चोरी करके NRO ले लेते हैं, माफ करवा लेते हैं चोरी, और हमारा आम आदमी साइकिल की चोरी, भैंस चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, वो जेलों में चला जाता है। इसके लिए इस निजाम के मुतालिक हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नासाफी का निजाम कभी नहीं चल सकता। इसलिए तैयार हो जाओ। हमने ये जुल्म का निजाम, सारे चोर हमारे ऊपर मुसल्लत के, और इन्होंने NRO लिया है 1100 अरब रुपए का। 1100 अरब रुपए की चोरी इन्होंने नैब की अमेंडमेंट करके माफ करवा ली है। 1100 अरब रुपया इन्होंने माफ करवाया है। अगर इससे आधा हम आपके ऊपर खर्च कर देते, आपको सब्सिडी दे देते, तो हम बिजली की कीमत भी कम कर सकते थे, गैस की कीमत भी कम कर सकते थे, पेट्रोल की कीमत भी कम कर सकते थे, और फजलुर रहमान की कीमत भी कम कर सकते थे पाकिस्तान से।